Today we will talk about the some basics which are should be learned in class 10th or 9th, and most of the student doesn't know, so that they never do the such questions. Okay, we will start. Okay, some basics about the chemistry. Some basics about the chemistry. Today we will talk about top 20 atomic number, atomic weight, that is most important. Okay, first of all, hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and calcium. This top 20 element must remember, all have them. Symbol, atomic number, atomic mass. Okay. So first of all we will write the atomic number, that is represented by Z, and mass is represented by A. The atomic number Z, that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Very easy. We have to talk about the atomic mass, and most of the बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, मास ही नहीं पता होता है उनको. ठीक है, let's start. 1, 1, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 9, 19. ठीक है, 20, 23, 24, 27 and 28 and 31, 32, 35.5 average atomic mass of two chlorine का isotopes का we will discuss. Okay, argon 40. ठीक है, potassium 39 and calcium that is also the 40. ठीक है. Okay, let's talk about the some representation of element. Okay, next we will proceed. Okay, let's proceed. We will take the example of sodium. Sodium, the element, how to represent the symbol E and the atomic number Z and atomic mass A. We can also write that E Z A, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दोनों में से सही है. ठीक है, तो सोडियम एलिमेंट का सिंबल Na, Z इसका बच्चा 11 और इसका जो मास है that is 23. Okay, so that will be how to calculate the electron, proton, neutron. That is also the most important, and also the atomic structure. Okay, most important. So that the Z is also other the proton. Z is proton. Okay, Z is proton. And if the element is neutral, you can see that sodium has no charge, either negative, either positive, only the neutral charge. Then P is equal to E. Z is equal to P is equal to E. That is, जितना एटॉमिक नंबर Z है बच्चा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा. ओके, that we will write 11. Proton is also 11, and we know that nucleon. ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज कॉल्ड न्यूक्लियन. दैट इज A, एटॉमिक मास. वजन जो होता है एलिमेंट का, उसके न्यूक्लियस में होता है बच्चा, पूरा का पूरा फोकस. एंड न्यूक्लियस में आपको पता है कौन कौन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन. तो मुझे पता है एटॉमिक नंबर कितना है बच्चा, 23, एंड प्रोटॉन आपने कितना निकाला है, 11, एंड प्लस n, यहां से n निकाल लेंगे बच्चा, दैट इज 23 माइनस 11, दैट इज 12, दैट इज 12. ओके, तो हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेट. ओके, लेट्स ड्रॉ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. उससे पहले आपको सेल का कॉन्सेप्ट दे दूं, क्लास 10th की टॉपिक. ठीक है, KLMN सेल, एंड यू नो द फार्मूला. In any cell, the maximum number of electron is calculated by 2n square, and n for K is 1, and n for L is 2, and 3, 4, and respectively it will be 2n square से आपका हो जाएगा बच्चा 2, and 2n square से हो जाएगा बच्चा 8, and 2n square से हो जाएगा 18, and 2n square से हो जाएगा बच्चा ये 32. ठीक है, तो 2, 8, 18, 32. तो बच्चा मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11. इसी को मुझे सजाना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते हैं बच्चा. ठीक है, तो ऊपर का क्वेश्चन रब करता हूं. ठीक है, एवरीवन हैज टू ड्रॉ द ऑल द टॉप 20 एलिमेंट. मैं सोडियम ड्रॉ कर रहा हूं, आपको कॉपी में सब ड्रॉ करने हैं. ओके, देन यू विल बिकम बेटर. तो बच्चे हम बात करते हैं, दैट इज ऑल अबाउट सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा, KLM, और इसमें आएगा 2, इसमें आएगा बच्चा 8, और इसमें आएगा 1. मैक्सिमम 2, 8, इसमें बच्चा 1. तो वैलेंस शेल 1 इलेक्ट्रॉन हुआ बच्चा. ठीक है,
तो यहाँ प्रोसीड करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चा, ठीक है। तो मुझे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आ चुका है, ये 11th का कॉन्सेप्ट और 10th की चीज है, ठीक है। देन आफ्टर हम इसको सजाएंगे बच्चा। तो हम न्यूक्लियस में लिखेंगे प्रोटॉन इज इक्वल टू 11, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 12, दैट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, तो मैं इसको घेर दूंगा। देन आफ्टर सेल विल ड्रॉ K, L and M, तो फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल। तो फर्स्ट सेल में ड्रॉ करेंगे बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 2, सेकेंड में कितने ड्रॉ करेंगे बच्चे, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और लास्ट में कितना ड्रॉ करेंगे बच्चा, 1। ओके, दैट दिस इलेक्ट्रॉन outermost cell that electron is known as valence electron and the cell is called valence cell or outermost cell। this cell is K, this is L, ठीक है बच्चा, K L, this cell is M। ओके, तो you have to draw the structure of sodium। तो सोडियम का बच्चा क्या क्या आपने कैलकुलेट कर लिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड दिस इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो you have to draw today questions, तुम्हें जो ड्रॉ करने हैं बच्चे, then you will become better। ओके, तो क्वेश्चन में आपको जो करने हैं प्रैक्टिस अपने से फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, क्लोरीन, इनके बच्चे क्या क्या ड्रॉ करने हैं आपको, इनके ड्रॉ करने बच्चे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास फाइंड करने हैं, ठीक है। देन आफ्टर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देन आपको फाइंड करना है बच्चा एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड देन आपको फाइंड करना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, दिस इज ऑल अबाउट, ये तो मैं कुछ एग्जांपल दिया हूं, बट यू मस्ट नो अबाउट 1 to 20 एलिमेंट। दिस इज द बेसिक्स क्लास 10। मोस्ट ऑफ द बच्चे यहीं पर गलती करते हैं और 11th में आते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। कोई भी चैप्टर शुरू करोगे बच्चा, मोल कॉन्सेप्ट या क्लास 12 के कोई भी चैप्टर, बिना उसके वेट के यू कांट फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, एंड बिना मॉलिक्यूलर वेट के मोल नहीं आएगा, और मोल जो है बच्चा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, that's the we will proceed to the other next time we will proceed about the electronic configuration। thank you।